on this day, the 16th of October 2021, for yet another session of Guldasta Urdu, and I wish to say Happy Dasera to all of you. Today we present the famous Urdu writer Ghulam Abbas. We'll be focusing on his famous Afsana Anandi. We are going to do a detailed analysis and discussion on this very famous short story. The program agenda will be as follows. I'll be speaking about the biography of Ghulam Abbas, followed by a small condensed form of the story, which will be read by Nasima Merchant. Unfortunately, today we were supposed to have Mustafa Lokhandwala to be one of the key speakers to do a critical analysis of the story Anandi. But unfortunately, there was some bereavement in his house and he had to excuse himself. But we have from Gurgaon, Mr. Sanjay Saxena, who will be giving us his critical review and analysis of Anandi. We'll be also inviting Zehnaz Lokhandwala to give her own opinion and critical review of the story Anandi. We also have Sanjay Bhardwaj ji, who in his unique Hindi language will give us an idea of what he feels is Anandi all about. Nirja ji, Nirja Apte, जो हमेशा हमारे प्रोग्राम में रहते हैं, उन्होंने आनंदी के फिल्म के ऊपर आधारित एक फिल्म बनी है मंडी, जो फेमस डायरेक्टर श्याम बेनेगल ने बनाया. Nirja ji has prepared a small synopsis of that movie and she'll be comparing how Anandi, the story, and how Shyam Benegal has made the movie Mandi. सबको उर्दू बहुत अच्छी लगती है, but many times उसके शब्द इतने difficult होते हैं कि author क्या बोलना चाहता है, many times we miss out. So यही हम कमी पूरी करने वाले हैं by taking this story Anandi and analyzing it in detail. Let us begin with the biography of Ghulam Abbas. Ghulam Abbas उर्दू अदब के एक बड़े नामवर अदीब माने जाते हैं. वो एक अफसाने निगार है. That means he is a famous short story writer. उनका जन्म 1909 अमृतसर में हुआ, मगर वो ज्यादातर लाहौर में बड़े हुए. वो एक साधारण से बैकग्राउंड से आए हैं. बहुत कम उम्र में ही उन्हें काम करना पड़ा, बट उनका शौक उर्दू लिटरेचर लिखने और पढ़ने में बहुत था. जब वो 15 बरस के थे, उन्होंने मैट्रिक तो कंप्लीट की 15 साल की उम्र में 1924 में, पर उस वक्त उसने टॉल्स्टॉय की एक लेख ट्रांसलेट की जिसका नाम है जिला वतन. ये जनवरी 1925 में हजार दास्तान नाम की मैगजीन में छपी. उन्होंने बच्चों के लिए कई किताबें लिखी. चांद की बेट, जद्दों का लफ्ज, सुरैया की गुड़िया, बर्फ की बेटी उनमें से कुछ है. 1930 में he translated the famous book of Washington Irving, which was published in Urdu by the title Al-Hamra ke Afsane. At first, Ghulam Abbas served as a freelance journalist in various publications, namely Humayun, Karwa, Hazar Dastan, Adab-e-Latif, and so on. His literary creations used to be published frequently during that time. From 1928 to 1937, he worked as a sub-editor of the famous magazine for children, Fool, and a favorite magazine for women, Tehzeeb-e-Niswan. He joined All India Radio in 1937 and became the editor of the magazine Awaz, published by AIR. In the same year, AIR also published another Hindi magazine called Sarang, of which he also was the editor. In 1947, Ghulam Abbas came to Pakistan and joined Radio Pakistan. In 1948, Radio Pakistan also issued their own magazine called Ahang, and Ghulam Abbas was appointed as editor of the magazine. In 1949, he joined the Federal Ministry of Information and under Colonel Majid Malik worked as Assistant Director, Public Relations. From 1949 to 1952,
He worked for BBC London as a producer. In 1967, he retired from service. His daughter Mariam Shera, in one of the events held in Karachi in 2014, says that Ghulam Abbas was a shy but deep man with a wealth of knowledge. She said that when she took her intermediate exams, he helped her out with the Shero Shairi. He enjoyed sharing his stories though in good bits and pieces with his children. The first story that Ghulam Abbas wrote in his life was Anandi. It was published in 1948. Punjab Advisory Board for Books, Lahore, gave him a cash prize for it. The second short story of Ghulam Abbas is Jare Ki Chandni, which got Adamji a literary award in 1960. Besides Anandi, two other stories are also very famous, Overcoat and Kutba. Critic Rauf Parekh from Pakistan says that Ghulam Abbas would pick tiny things from life and, like a painter, make stories out of them with minute details. Some stories he thought of for as long as 10 years. The above mentioned three pieces were taken from real life events. Anandi, for example, was a result of what he saw in Delhi. And Sanjay Saxena will be narrating a very interesting incident around that. Asif Farooqi, another critic from Pakistan, in one of his reviews says that Anandi should be read by town planners because what happened in the story happened in Karachi during Ziaul Haq's time. Mr. Farooqi also speaks about Abbas's story, Ringne Wale, that he said was inspired by the Jallianwala incident. In 1967, the government of Pakistan, for his literary work, awarded him Sitare-e-Imtiaz. Ghulam Abbas is considered one of the important short story writers of Urdu. He led a life of a common man and saw life very closely. He has included the experiences and the observations of his life in his short stories. His short stories have a color of realism in them. He used a simple but effective language for his short stories. His characterization is full of life, and he has taken his characters from the common parts of society. A lot of variety is there in the topics of his short stories. He was well acquainted with the art of short story writing. He was a satirist, a realist, and he used irony as an important tool in his tales. He died on November 2nd, 1982 in Karachi, Pakistan. I now request Naseema Merchant to narrate a condensed form of the story Anandi. सबसे पहले तो आप सब लोगों को हैप्पी दशहरा। जी हाँ, फारूक, उनके अदबी सफर का दौर तरक्की पसंद तहरीक से 2 साल पहले शुरू हो चुका था। उनके अफसानों में अफसानापन भी था, जो कि अफसाने की जान होती है और अफसाने का हक अदा होता है। उन्होंने कुछ ज्यादा नहीं लिखा, मगर जो कुछ भी लिखा खूब लिखा और मशहूर हुए। उनके अफसानों में आसपास और अतराफ की जिंदगी की झलकियां वाज़े तौर पर मिलती हैं। इनमें जीते जागते, हंसते बोलते, चलते फिरते इंसान मिलते हैं, जिससे आपका और हमारा रोजाना जिंदगी में आमना सामना होता है। उनकी नजर मसाइल पर पड़ती है और ऐसे मसाइल पर जिनकी तरफ दूसरे अफसाना निगारों ने कम तवज्जो दी है, और फिर वो इन मसाइल और मामलात को इस तरह अफसानों में डालते हैं कि इंसान उन अफसानों को जिंदगी भर नहीं भूल सकता, जैसे कि आज का अफसाना आनंदी। सैयद अहमद शाह बुखारी पतरस ने उनके अफसानों के बारे में कहा है कि इन अफसानों को पढ़ने के बाद एहसास होता है कि हमारे गिरदोपेश कई ऐसी दिलचस्पियां थी जो गुलाम अब्बास के बगैर आज तक नजर नहीं आई थी, और जिनकी बदौलत अब जिंदगी के बाद बेकैफ गोशे यानी गमज़दा चीजें, सैड चीजें भी रंगीन नजर आने लगी। आज उनका एक अफसाना आनंदी का खुलासा पेश कर रही हूँ। आनंदी के नाम से ही पता चलता है कि ये किसी औरत की कहानी होगी, मगर ये एक औरत की कहानी नहीं है,
बल्कि आनंदी एक शहर का नाम है, जो इस खुलासे के बाद आपको पता चलेगा। तो चलिए कहानी की इब्तिदा करते हैं। अफसाने की शुरुआत बल्दिया यानी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इजलास यानी मीटिंग से होती है, जहां पर मसला ये है कि तवाइफों की बस्ती जो कि शहर के बीचों बीच है और उसका वजूद इंसानियत, शराफत और तहजीब के दामन पर बदनुमा दाग है। और क्योंकि हर शरीफ आदमी को न चाहते हुए भी इस बाजार से गुजरना पड़ता है, और इस बाजार की वजह से उनकी बहू बेटियों का आना जाना भी मुश्किल है, क्योंकि इन बाजारी औरतों की वजह से उन लड़कियों के दिलों में भी बनाव श्रृंगार के नए तरीके अपनाने का शौक पैदा होता है। और उनके बच्चे जो स्कूल और कॉलेज में तालीम पाते हैं, उनका गुजर भी इसी बाजार से होता है। ये बच्चे जो हमारी कौम का मुस्तकबिल है, उन पर भी बुरा असर होता है, और उम्र के इस दौर में उनका भटकना लाजमी है। यानी ये बाजार नई पीढ़ी के लिए भी खतरा है। इस मीटिंग में कई मेंबरान होते हैं। इनके एक मेंबर जो कि किसी जमाने में टीचर थे, उनका कहना था कि इस बाजार की वजह से बच्चे ज्यादा से ज्यादा अब इम्तहानात में नाकाम होने लगे। इस मीटिंग में एक मेंबर जो एडिटर थे, उनका कहना था कि इस बाजार की वजह से हमारे शहर में शराफत, नेकोकारी, परहेजगारी दूर होती जा रही है और बुराइयां जन्म ले रही है, जैसे कि जालसाजी, बदमाशी, मंशियात यानी ड्रग का इस्तेमाल। इसी मीटिंग में एक उमर रसीदा यानी बड़ी उम्र के मेंबर भी थे और काफी तजर्बाकार थे। वो कहने लगे कि रात भर तबलीग की थाप, गाली गलौज और शोर गुल से आसपास के रहने वालों के कान पक गए हैं। रातों की नींदें हराम हो गई है। इसके अलावा हमारी बहू बेटियों के इखलाक पर भी असर पड़ता है, और उनकी तकलीफ इसलिए बड़ी थी कि उनका घर उस बाजार के बिल्कुल दरमियान में था, यानी बीच पे था। और जो गैर मुल्की फॉरेनर इस शहर में आते थे, उस बाजार के बारे में जब पूछते थे तो हम शर्म के मारे जवाब नहीं दे सकते। इन सब बातों को सुनकर मीटिंग के जो सदर यानी प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा कि वो सब जानते हैं, मगर इस मसले को हल कैसे किया जाए, उसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए। अगर ये फैसला किया जाता है कि ये अपना पेशा छोड़ दें, तो सवाल उठता है कि फिर वो लोग खाएंगे पिएंगे क्या। इसमें किसी ने ये भी मशवरा दिया कि ये औरतें शादी क्यों नहीं कर लेती, जिसको मजाक में उड़ा दिया जाता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि समाज इस चीज को कबूल नहीं करेगा। बल्दिया के मेंबर का कहना ऐसा था कि चूंकि वो तादाद में 10-20 नहीं थे, कई औरतें थी, उनके खुद के मकानात भी थे। फिर ये फैसला होता है कि इन मकानात को खरीद कर उन्हें रहने के लिए शहर से काफी दूर एक अलग थलग इलाका दे दिया जाए। इसी तरह इस फैसले पर अमल करते हुए इन औरतों को 6 कोस दूर एक इलाका दिया गया, जो खंडरों से घिरा हुआ था और जहां जानवरों का बसेरा था। शुरू में ये औरतें इस फैसले को मानने को तैयार नहीं थी, मगर उनकी सुनने वाला कौन था, वो मजबूर थी। इन तवाइफों के घिरों में 14 यानी 14 के करीब मालदार औरतें थी, और उनको उनके मकानों के दाम भी अच्छे मिले, और उनके मिलने जुलने वालों ने भी उनकी माली मदद की, जिसकी वजह से उन्होंने अपने आलीशान मकान बनवाए। जैसे ही वहां मकान बनने शुरू हुए, धीरे धीरे छोटा मोटा बाजार लगने लगा। कई मजदूरों को काम मिल गया। गर्ज के यहाँ सारा दिन शोर हंगामा रहने लगा, और जैसे ही लोग इस नए इलाके की खबर सुनते, हर कोई अपना कारोबार लगाने आ जाता। एक टूटी हुई मस्जिद को मरम्मत करके नमाज पढ़ने के काबिल बना दिया गया। चंद सालों में यहाँ जरूरियाती जिंदगी के अलावा डाक खाना, पुलिस स्टेशन, थिएटरिकल कंपनी खुल जाती है। छोटी मोटी दुकानें जैसे दूध की, हलवाई की,
हकीम खाना, दर्जी की दुकान, गर्ल्स की हर किस्म की दुकानें खुल गई। थिएटरिकल कंपनी सिनेमा हॉल में बदल गई, बिजली का इंतजाम भी हो गया और 20 साल के अरसे में यहाँ पर रेलवे स्टेशन, टाउन हॉल एंड जेल खाने भी बनाए गए। एक मजार भी बनाया गया जहाँ पर करक बाबा के नाम से एक बुजुर्ग भी आ गए। मंदिर भी बन गए। पहले वो एक या दो मंदिर होते थे, एक या दो मस्जिद होती थी, बाद में वो भी बढ़ गए। इस तरह पहले जैसी बस्ती बन गई और एक दिन तय किया गया कि वहां जाने के लिए बुध का दिन तय किया गया। इसके लिए जश्न का इंतजाम किया गया, शामियाने लगाए गए, बेहतरीन खाने का इंतजाम किया गया, लंगर बांटा गया और रात के वक्त इन औरतों ने अपने खास लोगों के साथ नाच गाने की महफिल सजाई। तवाइफों ने अपने मकानात की बनावट कुछ इस तरह की थी कि 7-7 मकानों के बीच एक सड़क थी और हर मकान के नीचे 4-4 दुकानें और उन दुकानों में जरूरियात जिंदगी की हर शय मौजूद थी। इस उजाड़ इलाके में मानो फिर से बाहर आ गए, दोबारा हलचल शुरू हो गई। 20 साल के अंदर ये बस्ती बड़े शहर में तब्दील हो गई। पहले उसका नाम हुस्नाबाद रखा गया, फिर हसनाबाद रखा गया, मगर हुस्नाबाद और हसनाबाद में कंफ्यूजन होने की वजह से इसका नाम आनंदी रखा गया। जो हम समझ रहे थे कि आनंदी एक औरत पर कहानी है, मगर ये एक शहर था जिसको तवाइफों के गिरोह ने बसाया था। कहानी फिर 20 साल पीछे दोहराई जाती है, जब एक बार फिर बल्दिया यानी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की मीटिंग होती है। यही मसला फिर से खड़ा होता है कि तवाइफों के इस बाजार को शहर से दूर किया जाए। जो 6 कोस दूर जगह दी गई थी, अब वो 12 कोस दूर जगह दी जाती है। यहीं पे कहानी का इख्तिताम होता है। यहाँ कहानी खत्म होती है और सवाल हमसे पूछा जाता है कि बल्दिया का क्या ये फैसला सही था? थैंक यू सो मच। अब मैं चाहता हूं कि संजय जी, आप अपने अंदाज में ये जो स्टोरी है जो हमने आज ली है, उसके बारे में कुछ अपने अंदाज में बोलिए। अच्छा, गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। फारूक, आवाज आ रही है क्या ठीक से? बराबर, फर्स्ट क्लास आ रही है। अच्छा, चलिए। तो जैसा नसीमा जी ने आपको बताया, बड़े गुलाम अब्बास उर्दू अदब के एक मशहूर और मारूफ अफसाना निगार माने जाते हैं और अफसाना निगारी के जरिए शोहरत हासिल करना उर्दू अदब में खासा मुश्किल काम है। वो इसलिए कि उर्दू में शायरी का ऐसा दबदबा रहा है कि अफसाना निगार हों, नॉवलिस्ट हों, ड्रामा लिखने वाले हों, उनको वो मकाम बमुश्किल ही मिलता है जिसके वो हकदार हैं। There is a bias towards poetry in Urdu. अगर मैं आपसे अंग्रेजी अदब की चंद मशहूर अदीबों के नाम पूछूं तो शेक्सपियर, मिल्टन, डिकिंस, जेन ऑस्टन, ओ हेनरी के नाम आएंगे। इनमें प्लेराइट भी हैं, पोएट भी, नॉवलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी लिखने वाले। फ्रेंच लिटरेचर में विक्टर ह्यूगो, मोपासां, ड्यूमा और बोदलेयर जहन में आते हैं। यहाँ भी हमें अदब के सभी जुमरों की नुमाइंदगी मिलती है। पर यही तजुर्बा जब हम उर्दू में करते हैं तो दिमाग में जो नाम आते हैं वो है गालिब, मीर, इकबाल और फैज, चारों के चारों शायर। तो उर्दू में शायरी के मुकाबिल दीगर लिटरेरी फॉर्म्स 19 ही रहे हैं। ऐसा क्यों है? शायद इसलिए कि उर्दू का करीबी ताल्लुक फारसी से है और फारसी में भी शायरी का सदियों से बोलबाला रहा है। अगर हम फारसी की अजीम अदबी शख्सियात का जिक्र करें तो जो नाम सरे फहरिस्त होंगे वो हैं रूमी, फिरदौसी, शिराजी, हाफिज, उमर खयाम, सब के सब शायर। तो ये तो हुआ कि दिस इज हाउ उर्दू लिटरेचर इज, द वर्ल्ड ऑफ उर्दू लिटरेचर इज डिफरेंट फ्रॉम say English or French literature. So to make a mark as a short story writer is relatively more difficult in Urdu. तो अफसाना निगारी के कमतर दर्जे के अलावा एक और पहलू है जिसका गुलाम अब्बास को सामना करना पड़ा। मेरा इशारा उस दौर की तरक्की पसंद तहरीक से है जो 1930s, 40s और 50s में शबाब पर थी।
सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को बगैर कबूल किए उर्दू अदब में कुछ भी हासिल कर पाना उस जमाने में आसान नहीं था। तसव्वुर कीजिए उस माहौल का जहां उर्दू अदब की मुमताज हस्तियां राजेंद्र सिंह बेदी, किशन चंद्र, ख्वाजा अहमद अब्बास, इस्मत चुगताई, सादत हसन मंटो, सज्जाद जहीर, कैफी आजमी, साहिल लुधियानवी, मजरूह सुल्तानपुरी वगैरह वगैरह हाथ में सुर्ख परचम लिए सब कुछ बदल डालने के जुनून में एक नई सुबह को गामजन है। So revolutionary fervor was the order of the day, and if you didn't join the bandwagon, it was difficult to make a mark in the literary in Urdu literature. इस पस मंजर में, इस इंकलाबी सैलाब में, इस तरक्की पसंद तहरीक के शोर व तलातुम में इसे बिना मुतासिर हुए अपनी बात कह पाना बेहद मुश्किल रहा होगा। एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि तरक्की पसंद लहर से वो कैसे बचे रहे, तो गुलाम अब्बास का मुख्तसर सा जवाब था, उनका रंग और था, मेरा रंग और था। These were his exact words, उनका रंग और था, मेरा रंग और था। इस जवाब से हमें गुलाम अब्बास की फितरत का भी अंदाजा होता है। We find out what kind of a person he is. सही गलत के सवालात में वो कभी नहीं पड़ते थे। किसी भी मुद्दे पर डट जाना, एक जोरदार स्टैंड लेना उनकी फितरत में नहीं था। He was a contented man and he was a बहुत ही सुलझे हुए इंसान थे। There were no complications in his mind. Very clear-sighted. तो जैसा नसीमा जी ने बताया, गुलाम अब्बास एक आम आदमी थे और उनके अफसाने आम आदमी की जिंदगी से ताल्लुक रखते हैं। इस वजह से अब्बास की कहानियां हकीकत पर मुबनी होती हैं, बहुत ही रियलिस्टिक होती हैं। उनके अफसानों में वो जज्बाती शिद्दत नहीं मिलती जो किशन चंद्र या राजेंद्र सिंह बेदी की कहानियों में सर चढ़ के बोलती है। That emotional intensity, which was a feature of the story writers of that era, is not found in गुलाम अब्बास। हाँ, मुपासा, चेकोव और मैक्सिम गोर्की की झलक हमें गुलाम अब्बास की कहानियों में जरूर मिलती है। और जहां तक उर्दू अदीबों का सवाल है, उन्होंने एक मर्तबा कहा, अगेन आई कोट, मैं उर्दू के किसी अदीब से मुतासिर नहीं हुआ। I was never influenced by any Urdu literary personality. That is what he had said. Now he was a great admirer of Maupassant, and he liked Maupassant so much that he learned French to be able to read the original works of Maupassant. So Ghulam Abbas Taraqi Pasand Tehreek is the progressive writers movement, that is their socialist communist ideology. तो गुलाम अब्बास तरक्की पसंद तहरीक में शामिल नहीं थे। इसका ये मतलब हरगिज नहीं निकाला जाए कि वो कदीम ख्यालात या दकियानूसी सोच रखते थे, ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो एक जदीद इंसान थे और दुनिया उन्होंने देखी थी। लंदन में रहे थे और उनकी शरीके हयात, हिज सेकंड वाइफ वाज एक्चुअली एन इंग्लिश लेडी। तो उन्हें कंजर्वेटिव या ऑर्थोडॉक्स कहना बिल्कुल गलत होगा। अगर इन सब मुश्किलात के बावजूद गुलाम अब्बास को भरपूर कामयाबी मिली, तो इसके पीछे था उनका हुनर, उनका बेमिसाल अंदाज़े तकरीर। जिस खूबी से वो कहानी लिखते हैं, या यूं कहें कि जिस खूबी से वो कहानी बुनते हैं, वो वाकई काबिल तारीफ है। एक हकीकत पसंद अंदाज और तफसील से लबरेज मंजर निगारी। He creates scenes rich with detail. That is the hallmark of a गुलाम अब्बास स्टोरी। और आनंदी इसकी एक खूबसूरत मिसाल है। 1938 में ये पब्लिश हुई थी। फारूक, आपने शायद 1948 कहा था, माय इंफॉर्मेशन की 1938 में ये पब्लिश हुई है। वी कैन चेक ऑन दिस। 1938 में शाया हुई इस कहानी में ने अदब की दुनिया में तहलका मचा दिया। बहुत ही रियलिस्टिक और बहुत ही डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन से साफ जाहिर होता है कि ये कहानी गुलाम अब्बास की तख्लीक ही हो सकती है। आनंदी की कहानी बहुत ही सरल है, इब्तिदा से इख्तिमाम तक किसी मरहले पर कोई पेचीदगी नहीं है। देयर इज नो कॉम्प्लेक्सिटी इन द स्टोरी। कहानी के अंदर कहानी, दो बयानियां एक साथ चलना, ये सब गुलाम अब्बास की कहानियों में हमें नहीं मिलता है। बड़ी सरल और स्ट्रेट फॉरवर्ड उनकी स्टोरीज होती है।
गुलाम अब्बास के तसव्वुर में किसी फर्द से कोई खास तवक्को नहीं रखी जाती है. He does not assign any agency to the individual. That's another feature of his literature. तो जैसे अल्लामा इकबाल ने लिखा कि खुदी को कर बुलंद इतना, या साहिल लुधियानवी लिख गए जला दो जला दो जला दो ये दुनिया, कि उन लोगों का मानना था कि इंसान में इतनी कुव्वत, इतनी स्ट्रेंथ होती है कि वो दुनिया बदल सकता है. पर ये जो जज्बात है, ये गुलाम अब्बास के किरदार मुकम्मल तौर पर इनसे अनजान है. उनके दिल में ना तो दुनिया बदलने की कोई ख्वाहिश है, ना ही किसी तबकियाती जंग, किसी क्लास स्ट्रगल में शिरकत की. They don't wish to participate in any great class war. अब्बास की कहानियों में किरदार हालात से समझौता करते हैं, हालात से जंग करके अपनी मर्जी के मुताबिक माशरे को तब्दील करने की कोई अज़ायम नहीं रखते. They do not entertain any such ambitions of changing the world. गुलाम अब्बास का कहानी लिखने का अंदाज की एक खासियत ये भी है कि कहानी धीरे धीरे सब्र व तहम्मुल के साथ बढ़ती है. किसी तरह की कोई जल्दबाजी नहीं. उनकी नजर में अफसाना निगारी एक फन है, और कई दफा ऐसा गुमान होता है कि जिस तरह एक नक्काश एक मुजस्समा, like a sculptor working on a statue, एक मुजस्समे को शक्ल फरहाम करता है, कुछ उसी तरीके से अब्बास अपनी कहानी लिखते हैं. इस लिहाज से गुलाम अब्बास का मौकिफ क्लासिकी अफसाना निगारों से इत्तेफाक रखता है, जिसमें फन खूबसूरती का हसूल है, किसी अखलाकी या इनकलाबी मुहिम का औजार नहीं. Art for art's sake and not for advocacy or an ideology or a cause. So Ghulam Abbas believed in the classical tradition that art must first and foremost be beautiful. The purpose of art is to create beauty, and political advocacy or championing the cause of a moral perspective or an ideology is not the responsibility of a literary person. That was his belief. तो गुलाम अब्बास की कहानियां उनकी बेहतरीन मंजर निगारी की तस्दीक करती हैं. उनके नजदीक तफसील पर पूरी तवज्जो होनी चाहिए. Lot of focus on detail. The richness of his stories lies in the details that he provides. खालिद हसन को दिए गए इंटरव्यू में आप फरमाते हैं, and I quote, this was an interview that he gave to Khalid Hassan, who was compiling an anthology of Pakistani short stories, and those short stories were in English. They were English translations of Urdu stories. So the interview was conducted in English, and there Ghulam Abbas says, I always pay equal attention to details because they must remain true to life. Sometimes a minor detail that rings false can destroy the entire effect of a story, just as a false note can mar an otherwise perfect musical composition. तो ये भी, यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि म्यूजिक का उनको बड़ा शौक था. जब वो लंदन में थे तो वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक में उनकी बड़ी दिलचस्पी हो गई थी, और उनके घर में उन्होंने बांसुरी भी बजाई, वायलिन भी बजाया, but he really excelled at Spanish guitar. Spanish guitar में he was quite proficient. और तो he was really an artist at heart. He was not championing a cause through literature, but trying to create beauty through art. That was his basic objective. तो जिंदगी को बहुत बारीकी से देखते हैं, पर उससे ताल्लुकी भी रखते हैं. He remains detached. He observes life very closely, very minutely, but remains detached. तो उनकी जो कहानियां होती हैं, they're very realistic, वास्तविक कहानियां होती हैं. एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, I borrow all my raw material from life. So these quotations from the interviews I've included to give you an idea of the man, of his thought process. अपनी पैनी नजर और अपनी लसानी सलाहियत के जरिए गुलाम अब्बास हमारी नजरों के सामने एक तस्वीर पेश करते हैं. जैसे नसीमा जी ने बताया कि एक पेंटिंग सी वो बना देते हैं. मिसाल के तौर पर आनंदी का वो सीन लीजिए आप जहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू हो रहा है. तो उन्होंने देखिए कैसे लिखा हुआ है. जस्ट फोकस ऑन द डिटेल्स दैट ही प्रोवाइड्स. चंद ही रोज में तामीर का काम शुरू हो गया.
दिन भर ईंट, मिट्टी, चूना, शहतीर, गार्डर और दूसरा इमारती सामान गाड़ियों, छकड़ों, खच्चरों, गधों और इंसानों पर लदकर इस बस्ती में आता और मुंशी साहब हिसाब किताब की कॉपियां बगलों में दबाए उन्हें गिनवाते और कॉपियों में दर्ज करते। Okay, so you can visualize what's happening. You really don't have to stress your mind. You can see before your eyes. मीर साहब मेमारों को काम के मुतालिक हिदायतें देते. Mir is an engineer, Memar is an architect. There's a lot of Persian in, there's a certain amount of Persian in Ghulam Abbas story because he grew up on Persian story. His grandmother, his Nani's sister was bedridden in the house and she was a Persian speaking person. Her mother tongue was Persian and she would tell him stories in Persian. So Persian was, Urdu and Persian he learned simultaneously as a child. So he had a very good knowledge of Persian and that is reflected in his stories. तो मीर साहब मेमारों को काम के मुतालिक हिदायतें देते, मेमार मजदूरों को डांटते डपटते, मजदूर इधर उधर दौड़ते फिरते, मजदूरियों को चिल्ला चिल्ला कर बुलाते, सारा दिन एक शोर और हंगामा रहता और सारा दिन आसपास के गांव के देहाती अपने खेतों में और देहातिन अपने घरों में हवा के झोंकों के साथ दूर से आती हुई खटखट की धीमी आवाजें सुनती रहती. So this, I mean, it's a very, very graphic thing. कितना सही, कितना डिटेल, कितना मुकम्मल, कितना खूबसूरत डिस्क्रिप्शन. तो आनंदी एक ऐसी कहानी है जिसमें आम आदमी की अहमियत, उसे किरदार पर हमारा ध्यान जाता है. काबिल गौर ये नहीं कि एक पूरा शहर आबाद हो गया. काबिल गौर ये है कि इसमें शहर के अमीर तबके का किसी तरह का कंट्रीब्यूशन नहीं था. शहर बना तो इसमें किरदार रहा छोटे छोटे लोगों का. नाई हुआ, हलवाई हुआ, सिगरेट बेचने वाले, फल शरबत बेचने वाले, मुल्ला वगैरह. तो जब हम किसी शहर को औरंगाबाद या अहमदाबाद का नाम देते हैं तो हम आम आदमी के किरदार को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं. ये जो हमारा माशरा है, हमारी जो सोसाइटी है, ये किसी राजा महाराजा या नवाब की मेहरबानी नहीं बल्कि तमाम छोटे छोटे लोगों के बाहमी इन्हसार का नतीजा है. बाहमी इन्हसार is mutual interdependence, mutual interaction. So the society is an outcome of the interactions amongst the smaller people. तो उनके आपसी तहामुल से की बुनियाद पर ही हमारा समाज खड़ा है. ये पैगाम भी हमें आनंदी में मिलता है. आनंदी एक हकीकी वाक़ये पर मुबनी है. पुरानी दिल्ली में एक जगह है चाबी बाजार जो कई दहाइयों से कागज के कारोबार का मरकज बना हुआ है. अगर आपको शादी के कार्ड्स छपवाने हैं या घर की दीवारों के लिए वॉलपेपर खरीदना है तो आप चाबी बाजार का रुख करेंगे. पर ये तो आज के हालात हैं. 1937 के पहले चाबी बाजार में तवायफों के कोठे हुआ करते थे जो मकामी लोगों को पसंद नहीं था. जब नई दिल्ली बन रही थी तो दिल्ली की म्युनिसिपल कमेटी में तय किया गया कि शहर से बाहर कुछ जमीन तवायफों को दिलवा दी जाए जहां वो रह सकें. चुनाचे गार्स्टियन बैस्टियन रोड, एक अंग्रेज जनाब थे, उनका नाम था गार्स्टियन, उनके नाम पर ये रोड पड़ी हुई है, गार्स्टियन बैस्टियन रोड, जो जीबी रोड कहलाती है. जीबी रोड पर रहने को जगह दी गई. ये सड़क जीबी रोड जो थी ये पुराने शहर के बाहर थी. सड़क गैर आबाद थी, रिहायशी मकान या दुकानें नहीं थी. सड़क के दोनों ओर खाली जमीन पड़ी थी. इसकी वीरानी की वजह से दिल्ली की म्युनिसिपल कमेटी में इसे शुरफाए शहर के लिए निस्बतन कम नुकसानदेह समझकर तवायफों को दे दिया गया. उस जमाने में गुलाम अब्बास ऑल इंडिया रेडियो में मुलाजमत करते थे. AIR का दफ्तर पुरानी दिल्ली की अलीपुर रोड पर था और गुलाम अब्बास साहिब की रिहाइश नई दिल्ली में थी. यानी अब्बास शहर के इस सिरे पर और दफ्तर उस सिरे पर. हर रोज दफ्तर आते जाते गुलाम अब्बास जीबी रोड से गुजरते थे. उन्होंने देखा कि कुछ हफ्तों तक तो वहां कुछ हुआ नहीं, जगह वीरान की वीरान ही पड़ी रही. और फिर उन्होंने देखा कि कुछ 2-3 महीने बाद वहां पे तामीरी सरगर्मियां शुरू हो गई. कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्टेड.
राज मजदूर, नक्श नवीज, ठेकेदार, इंजीनियर, मुंशी यहाँ चलते फिरते नजर आने लगे। और फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि जोश तामीर जुनून की हद तक पहुंच गया और दिन के अलावा रात रात भर गैस लाइट की रोशनी में कई मकान बनकर तैयार हो गए। यही वाकया आनंदी की बुनियाद बना। तो ये अफसाना गुलाम अब्बास के ज्यादा मुशाहिदे का नतीजा है। जीबी रोड आज भी दिल्ली में मौजूद है। हाँ, उसका नाम अब बदलकर स्वामी श्रद्धानंद मार्ग हो गया है, हालांकि वो इलाका आज भी जीबी रोड के नाम से ही जाना जाता है। ये भी एक हसीन इत्तेफाक है, इट्स अ ब्यूटीफुल कोइंसिडेंस, कि आज जीबी रोड फिर शहर के बीचों बीच हो चला है। थैंक यू। थैंक यू संजय जी, आपने बहुत अच्छी रीत से जो एग्जाम्पल दिए, आपने बहुत मजा आया। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर इतना अच्छी रीत से आपने एक्सप्लेन किया। मैं अभी रिक्वेस्ट करता हूँ जैनाज से कि जैनाज आप प्लीज अपना वीडियो चालू करें और आप प्लीज शुरू करें। हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो इसी उपन्यास पे, आनंदी पे, मैं अपना रिव्यू देना चाहूंगी, अपना जायजा साझा करना चाहूंगी। कहानी कुछ इस प्रकार से शुरू होती है। बल्दिया का इजलास जोरों पर था। बल्दिया के ज़ेर बहस मसला ये था कि जनाना बाजारी को शहर बदर कर दिया जाए, क्योंकि उनका वजूद इंसानियत, शराफत और तहजीब के दामन पर बदनुमा दाग है। शहर के बीचों बीच होने से शरीफ आदमी पर गलत प्रभाव पड़ता है। अब यह कहानी एक मुकम्मल बयान है। ऐसा कोई खास किरदार नहीं है जिस पर तवज्जो दिया गया हो। जब कहानी शुरू होती है तो पहले पहले तो ये लगता है कि ये एक बहुत ही आम सी कहानी है जो औरतों के खिलाफ है और ये सरपरस्त समाज की एक पुरानी सी कथा है, यू नो दैट पैट्रियार्कल सोसाइटी एंड द सेम ओल्ड थिंग। और हमें बस ये आम तौर पे यही पढ़ने को मिलता है। लेकिन ये जिसे नापाक और बदनुमा दाग बता रहे हैं, ये जनाना बाजारी उन्हीं की बदौलत कायम है। इलाके में चोरी, बदमाशी, जालसाजी, खुदकुशी, नशे की लत, सबके लिए इन औरतों को आरोपी माना जाता है। तो क्या इनके आने से पहले या इनके जाने के बाद क्या ये अपराध कभी नहीं हुए? इन औरतों की शादी करवाने का भी जिक्र किया जाता है, लेकिन फिर ये बस एक मजाक सा ही बन के रह जाता है। हमें इन्हें अपने समाज में एक हिस्से के रूप में स्वीकार करना है, तभी हम उनके बेहतरीन के लिए, उनके बेहतर के लिए काम कर सकते हैं। दैट इज द इम्प्रूवमेंट, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए वी कैन डू मेनी मेनी मोर थिंग्स। ये बुराई नहीं है, ये सदियों पहले प्रारंभ किया एक व्यवसाय है जिसका उपयोग करने वाले ही इसकी निंदा करते हैं। ये पाखंडी समाज तब भी था और ये पाखंडी समाज अब भी है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, कहानी को गति मिलती है। शहर बदर, दैट इज रिलोकेशन, रोजगार पैदा करता है। कई बार देखा गया है कि मस्जिद के करीब आबादी बढ़ जाती है, टूटी टूटी मस्जिद की मरम्मत की जाती है और नमाजियों को नमाज पढ़ने की एक जगह मिल जाती है। और तो और कहीं से एक मुल्ला भी आ जाते हैं जिसे बाकायदा तौर पर इमामत सौंप दी जाती है। धीरे धीरे कई छोटे मोटे कारोबार मस्जिद के इर्द गिर्द शुरू हो जाते हैं। यह एक बरकत की निशानी है। 6 कोस दूर जो इलाका है, इनके लिए उन्होंने प्लान किया था, वहां पे कच्ची सड़क थी, खंडर थे, सांप, गीदड़, चमगादड़, उल्लू वहां पे बसते थे। लेकिन फिर वहां विभिन्न प्रकार के व्यापार शुरू हो जाते हैं, जैसे कि दर्जी, फूल वाला, तरकारी, रोटियां, सिगरेट, बीड़ी, कसाई।
एंड मोर ओवर पब्लिक यूटिलिटीज, सार्वजनिक सुविधाएं भी शुरू हो जाती है। बिजली, पक्की सड़क भी मिल जाती है, बिजली, स्कूल, कॉलेज, कोर्ट कचहरी, अस्पताल। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। वी आर ऑल इंटरडिपेंडेंट। और ये इंटरडिपेंडेंस शुरू कहाँ से हुई है? Where did it begin from? In this town. इन्हीं सेनानियों के रिश्तेदार भी वहां कम दामों में दुकानें, घर लेकर बस जाते हैं। At the same time, सनाना बाजार शहर का हृदय था। यहाँ बीचों बीच नहीं था, बल्कि शहर इसके इर्द गिर्द बस गया था। कहानी के अंत तक एक पूरी तरह की नई दुनिया वहां बन जाती है, जिसकी एक पहचान है। इट हैज इट्स ओन आइडेंटिटी बाय द नेम ऑफ आनंदी। कहानी का उत्कर्ष मकामी लोग के इरादों के विपरीत था। The climax of the story was in contrast with the intentions of the local people. गुलाम अब्बास ने कहानी में जो आखिरी अनुच्छेद लिखा है, यह दर्शाता है कि कोई भी इतिहास से नहीं सीखता और इतिहास हमेशा खुद को दोहराता है। History simply repeats itself. गुलाम अब्बास का मशहूर अफसाना आनंदी। Thank you, Zenas, for your lovely review. I now request Sanjay ji, संजय भारद्वाज जी, जो हम सब जानते हैं कि बहुत हिंदी के बहुत प्रख्यात लेखक हैं। तो संजय जी, प्लीज आप अपना एक रिव्यू दे दीजिए ये स्टोरी आनंदी के ऊपर बाय गुलाम अब्बास। You'll have to unmute yourself, संजय जी। नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? परफेक्ट आ रही है जी। मित्रों, सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूंगा फारूक मर्चेंट जी को और ज्ञान अदब की पूरी टीम को, क्योंकि मैं विनम्रता से कहना चाहूंगा आज बहुत थोड़े लोग ऐसे हैं निश्चित तौर पर जो मैं समझता हूं कि साहित्य को लेकर कुछ गंभीर काम कर रहे हैं। और ऐसे में कहानियों पर, साहित्य पर इस तरह की चर्चाएं तर्कसंगत भी होती हैं और मेरी राय में अनिवार्य भी होती हैं, क्योंकि जब चर्चा होती है तो चर्चा हमेशा संवाद का मार्ग प्रशस्त करती है। मुझे अपने एक रचना की 2 पंक्तियां यहाँ याद आ रही हैं कि विवादों की चर्चा में युग जमते देखे, विवादों की चर्चा में युग जमते देखे, आओ संवाद करें, युगों को पल में पिघलते देखें, मेरे तुम्हारे चुप रहने से बुढ़ाते रिश्ते देखें, आओ संवाद करें, रिश्तों में दौड़ते बच्चे देखें। जब संवाद होता है तो निरंतरता एक बनी रहती है, चर्चा बनी रहती है, और हर चर्चा के पीछे कहीं ना कहीं एक कोई कहानी होती है, कोई एक कथा होती है। मित्रों, जैसा हम सभी जानते हैं, गुलाम अब्बास साहब बहुत बड़े कथाकार रहे। मैं ये मानता हूं कि कथा या कहानी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जितनी पुरानी हमारी सृष्टि है, जितनी पुरानी ये धरती है, उतनी पुरानी जो कहानी की विधा भी है। हर जीव की, सृष्टि के हर एक जीव की, बल्कि मैं कहूंगा कि निर्जीव की भी एक नहीं बल्कि अनेक कहानियां हो सकती हैं। इसलिए कहानी को सबसे पुरानी विधा माना जाता है। कहानी या कथा शाश्वत है, कहानी इटर्नल है। इटर्नल का अर्थ है कि वो हमेशा चलती है। और आप देखिए, बुजुर्ग भी कहते हैं, हम सब जानते हैं, कहानी सदैव चल रही होती है, केवल समय के साथ में पात्र बदलते हैं। और ऐसी एक कहानी है आनंदी। संस्कृत की एक उक्ति है जो कहती है, हर मूल का मूल पहले से सृष्टि में उपस्थित है। वस्तुतः किसी बात का संज्ञान, किसी बात का ज्ञान हमें आज होता है, लेकिन वो हमसे पहले लाखों लोग कर चुके होते हैं, हमारे बाद जो लाखों लोग करेंगे। तो ये जो बात है कि हर मूल का मूल पहले से उपस्थित होता है, ये मूल यहाँ आदरणीय सक्सेना जी ने उल्लेख किया कि उन्होंने किस तरह से जो है उस चांदनी बाजार को बसते हुए देखा। मैं उससे भी थोड़ा पीछे जाऊंगा। भारतीय वांग्मय में, भारतीय साहित्य में एक लोक कथा है, और ये लोक कथा इस कहानी का मूल है। ये लोक कथा कहती है, नगरवासियों ने मिलकर निर्णय किया कि सारी वेश्याओं को शहर से बाहर कर दिया जाए। निर्णय पर अमल हुआ।
वीरांगनाओं को शहर से दूर जंगल में एक खंडहर में छोड़ दिया गया। वर्षों बाद नगर खंडहर हो गया और खंडहर के इर्द गिर्द नया नगर बस चुका था। मित्रों, ये कहानी है कि जो मनुष्य के आरंभ से है और मनुष्य के अंत तक रहेगी। लेकिन हाँ, जैसा मैंने कहा कि मुझे यहाँ एक संदर्भ याद आ गया। विजय लवाटे जी मानवीय नाम की संस्था है कि सामान्यतः यहाँ ये उल्लेख भी किया गया, संभवतः सक्सेना जी ने उल्लेख किया कि जब कोई शहर बसता है तो हम उसे बड़े बड़े लोगों का नाम तो दे देते हैं, छोटे लोगों का हम उल्लेख नहीं करते। समय कम है इसलिए मैं संदर्भ पे नहीं जाऊंगा। जिस संदर्भ की मैं बात कर रहा था बहुत छोटे में, मानवीय नाम की संस्था जो वैश्याओं के बच्चों के लिए काम करती रही। और पहली बार जब मैं वहां गया तो विजय लवाटे जी जो संस्थापक थी, उन्होंने मुझे बताया कि आरंभ में इस क्षेत्र में विरोध हुआ, लेकिन चूंकि वैश्याओं के बच्चों को वहां रखा जाएगा, और उसके बाद उन्होंने वहां के तमाम लोगों को एक जगह बुलाकर कहा कि तुम में से कोई इन बच्चों का पिता है। और उसके बाद वो पहली स्थिति बनी कि जहां वो उस जगह का उपयोग जो है उन बच्चों के लिए कर सकी। खैर मित्रों, मैं कहूंगा कि इस कहानी का मूल तो ठीक है, लेकिन इस कहानी का अद्भुत विस्तार और अद्भुत वर्णन जो है वो गुलाम अब्बास साहब ने अपनी लेखनी के माध्यम से किया है। कहा भी गया और नसीमा जी ने कहा था कि माइन्यूट डिटेल्स हैं, मैं इससे सहमत हूं। इस कहानी को पढ़ते समय आपकी आंखों में निरंतर एक चित्र चलता है और ये कहानी के सशक्त होने का सबसे बड़ा जो है साक्ष्य होता है। कहानी पढ़ते समय अगर वो विजुलाइज हो रही है, लगातार आंखों के सामने दृश्य चल रहे हैं, तो कहानी की विधा के लिए बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। और एक और बड़ी कामयाबी मैं ये मानता हूं कि कथा पढ़ते समय यदि निरंतर एक जिज्ञासा बनी रहे, जिसे हम इंग्लिश में कहें कि व्हाट नेक्स्ट, अगर कहानी पढ़ते समय ये भाव बना रहे कि इसके बाद क्या होने वाला है, ये उत्कंठा, ये जिज्ञासा अगर कथाकार बनाकर रख सकता है, तो मित्रों मान के चलिए कि कहानी निश्चित तौर पर पाठकों के हृदय तक पहुंचती है। एक आध छोटे छोटे बिंदुओं का और उल्लेख करूंगा। मैं ये मानता हूं कि लेखक अनेक बार जो कुछ लिखता है, हमारे यहाँ कहा जाता है कि 24 घंटे में किसी एक क्षण माँ सरस्वती आपकी जिह्वा पर विराजमान होती है, इसलिए अपने शब्दों का चयन बहुत विचार पूर्वक करना चाहिए। लेखक की लेखनी में माँ सरस्वती होती है और लिखते समय वो कभी कभी कुछ ऐसा लिख जाता है जो वो अपने पात्रों के माध्यम से कहता है, लेकिन वो दस्तावेज हो जाता है। एक जगह वो कहते हैं, मतलब ये यूनिवर्सल ट्रूथ है मित्रों, एक जगह गुलाम अब्बास साहब ने इस कहानी में लिखा है कि शहर के बीचों बीच गुजरगाह है। ये जो इलाका है वैश्याओं का, वो जो इलाका, वो शहर के बीचों बीच है। मैं कहना चाहूंगा यहाँ उपस्थित तमाम साथियों से, एक बार विचार कीजिएगा, आज हम जिस शहर में बैठे हैं पुणे में, उसका जो बीचों बीच का स्थान है, क्या ये वही स्थान नहीं? हम जिस भी शहर से जुड़े हो एक बार विचार करें, अधिकांश शहरों में बीचों बीच का स्थान रेड लाइट एरिया होता है। अब ये रेड लाइट नाम क्यों दिया गया, ये चर्चा का विषय हो सकता है, आज वो हमारा विषय नहीं, इस पर हम चर्चा कभी और करेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा मित्रों कि हर शहर कमोबेश न्यूनाधिक, कम या अधिक इसी तरह से बसता है। एक आध बिंदु और, एक और बहुत विचारणीय बिंदु ये कहानी उपस्थित करती है। जैसा उल्लेख भी किया गया कि एक महाशय जो आरंभ में भाषण कर रहे हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बैठक में, और वो कहते हैं कि इन वैश्याओं के बनाव श्रृंगार को देखकर जो सामान्य गृहस्थ स्त्रियां हैं, वे अपने गरीब पति से मूल्यवान आभूषण और कीमती साड़ियों की मांग करने लगती हैं, और शनै शनै उनका जो पारिवारिक जीवन है, उनका जो दाम्पत्य है, वो नर्क हो जाता है। मित्रों, इस तरह की समझ, इस तरह की नादानी, ये कहानी यद्यपि 7 दशक पुरानी है, लेकिन आज भी वर्तमान समाज में भी देखने को मिलती है। मेरा स्पष्ट मत है कि गृहस्थी के रथ के 2 पहिए हैं, स्त्री और पुरुष, और अधिकांश समय पूरी दुनिया में स्त्रियां हैं जो अपने परिवार के अनुरूप अपनी इच्छाओं से समझौता करती हैं और अपने परिवार को जो है स्वर्ग बनाती हैं। दे आर होम मेकर, और कोई भी होम मेकर जो है वो अपने होम को नर्क नहीं बनाता। इस तरह के पात्रों को मुझे लगता है यथार्थ जीवन के साथ साथ कहानी और किस्सों से भी अलविदा करने का समय आ गया है। अंत में मैं कहना चाहूंगा, कहानी के शीर्षक पर ध्यान दिया जाए, हुस्नाबाद, हसनाबाद, और जब पता किया गया तो मूल रूप से उस बस्ती का नाम आनंदी था। हमारा दर्शन कहता है, हमारी फिलॉसफी कहती है कि पाखंडों से मुक्त रहिए, इस जो कुछ ऊपर दिख रहा है इस सब से मुक्त रहकर व्यक्ति अपने जीवन को सहज रूप से जिए, जो जैसा उसको वैसा स्वीकार करके अगर आगे चलता है तो जीवन में सच्चा आनंद है। मित्रों, कुल मिलाकर
ये कहानी, जैसा मैंने कहा कि कहानी शाश्वत होती है, इटर्नल होती है। ये कहानी पहली स्त्री और पहले पुरुष से आरंभ होती है, और मैं मानता हूं कि आनंदी जैसी कहानियां इस सृष्टि के अंतिम स्त्री और अंतिम पुरुष तक लगातार चलती हैं। इस आज की इस चर्चा से जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही एक बार फारूक मर्चेंट जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। पुनः नमस्कार। थैंक यू वेरी मच संजय जी। आप जिस तरह से बताए, यू हैव रियली गिवन अ वेरी न्यू व्यू टू दिस, एंड आपने जो कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़े स्टोरी के, उससे बहुत मजा आ गया। तो मैं अभी इनवाइट करता हूँ निर्जा जी से। निर्जा जी ने कुछ हमारे लिए तैयार किया है। श्याम बेनेगल की फिल्म मंडी, जो आनंदी के ऊपर बेस्ड है। तो निर्जा जी, आप अपना शुरू करें जो आप बोलना चाहते। थैंक यू वेरी मच संजय जी। थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते जी, आप सभी को नमस्कार कहती हूँ। और आप सब इतनी खूबसूरती के साथ आपने इस सब की व्याख्या की है कि मुझे लगता है मैं शायद उतना अच्छा ना बोल पाऊं, लेकिन कोशिश करती हूँ। मैं बात करना चाह रही हूँ आनंदी इस कहानी पर आधारित फिल्म मंडी की। और श्याम बेनेगल जैसे निर्देशक ने मंडी ये फिल्म बनाई है। और कहानी तो सभी को पता है, लगभग उसी आधार पर ये फिल्म बनी है। लेकिन चूंकि फिल्म ये माध्यम अलग है, इसलिए उसमें काफी बदलाव किए गए हैं, ऐसा मुझे फिल्म देखते समय लगा। तो कुछ ऐसा है कि फिल्म शहर के बीचों बीच की एक मौके की जगह है, जहां पर प्रभावशाली राजनेता हैं और दूसरे कुछ सामाजिक वर्चस्व वाले लोग हैं जो इसे खरीदना चाहते हैं। पॉलिटिक्स और प्रोस्टिट्यूशन, इन दोनों पर व्यंग करती ये फिल्म बनाई गई है। और ये फिल्म जिसमें शबाना आजमी है, नसीरुद्दीन शाह है, स्मिता पाटिल, ओमपुरी जैसे बहुत ही मंजे हुए कलाकार हैं जिन्होंने अभिनय किया है, कुलभूषण खरबंदा जी है। तो बहुत ही शानदार स्टार कास्ट है और शायद इसलिए ये फिल्म भी उतनी प्रभावशाली बन पड़ी है। नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट आर्ट डायरेक्टर, हाईएस्ट नंबर ऑफ फिल्म फेयर अवार्ड्स विनर्स हैं, 12 फिल्म फेयर अवार्ड मिले हैं। तो ऐसी ये फिल्म है। अभिनय के लिए अगर कहूँ तो उम्दा, हर चीज के लिए बहुत उम्दा। कहानी की जब हम बात करते हैं तो हम अब तक तो सुन चुके हैं कि क्या कहानी है, और रुक्मिणी बाई का जो कैरेक्टर है वो दिखाया गया है, जो उस कोठे की मालकिन है या तवायफ खाने की मालकिन है। और उसे पता लगता है कि एक नया कोई आने वाला है जो इसे खरीद रहा है या नया मकान मालिक है। तो उससे बातचीत करते हुए उसे कई बातें समझ में आती हैं और तब पता भी लगता है कि शायद हमें ये जगह छोड़नी पड़ सकती है। लेकिन इस बीच कई ऐसी अलग अलग चीजें वहां बताई गई हैं, और सबसे बड़ी बात मुझे ये लगती है कि उसमें जो रुक्मिणी बाई का कैरेक्टर है वो अपने यहाँ रह रही सभी लड़कियों को अपनी बेटी की तरह मानती है। और जिस तरह से वहां इसे दर्शाया गया है, वो कोठे का जितना भी दृश्य है, वहां की लड़कियां हैं, उनकी मस्ती है, हंगामा है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो फिल्म के माध्यम से ज्यादा सजीव हो चली हैं। और शायद वो देखते वक्त कहीं ना कहीं मुझे ये लगा कि कहानी का मूल उद्देश्य कुछ भटक सा गया है। ये मेरा अपना मानना है। लेकिन कहानी जैसे आगे बढ़ती है तो उसमें ये होता है कि काफी सारे जो कैरेक्टर्स हैं, उसमें एक जीनत नाम की लड़की है जिसका कैरेक्टर है, जो बहुत अच्छा गाती है। और एक और खास बात कि रुक्मिणी बाई कहती हैं कि हाशिम साहब तो जानते हैं कि हम हुनर और मेहनत से कलाकार हैं, पर किस्मत ने हमें कीचड़ में पटक दिया। ये सिर्फ एक ही डायलॉग उनकी पूरी की पूरी कहानी को खोल के रख देता है, क्योंकि शुरुआती दौर से ही ये माना जाता रहा है कि ये सभी कलाकार के बतौर काम करती थी, जो नृत्य और संगीत में या गायन में निपुण थी। लेकिन मजबूरी के चलते उन्हें बाद में शायद जिस फरोशी करनी पड़ी या जिस बेचने का जो काम वो करती थी वो उन्हें करना पड़ा। और यहाँ एक और खास बात मंडी में मुझे नजर आई कि वो सारी लड़कियां किसी जबरदस्ती में ये काम नहीं करती, बल्कि उन्हें पता है कि अपना पेट पालने के लिए हम ये काम कर रही हैं, और आपस में बड़े प्यार से वो रहती हैं। उनकी मर्जी के खिलाफ उन्हें कोई छू नहीं सकता, ये भी एक खास बात है।
और आपसी रिश्तों को मानवीय आधार पर इस फिल्म में बहुत सुंदरता के साथ रेखांकित किया गया है। रुक्मिणी और जीनत का जो रिश्ता है उसे भी बहुत सुंदरता के साथ दिखाया है। तो मुझे ये लगता है कि जब इस तरह की बात होती है तो क्यों सिर्फ उन्हें दोषी माना जाता है, उन पुरुषों को क्यों नहीं माना जाता जो यहाँ आते हैं अपने आनंद के लिए। तो मेरे ख्याल से वो महिलाएं उतनी दोषी नहीं हैं, मेरे हिसाब से तो वो पुरुष ज्यादा दोषी हैं जो यहाँ पर आकर अपने लिए कुछ चंद राहत के पल तलाश करते हैं। वो कहते हैं कि हमें यहाँ आकर सुकून मिलता है, लेकिन गलती तो उनकी भी है, उतनी ही है। ये तो खैर अपना पेट पालने के लिए ये काम करती हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय समाज की जो दोहरी मानसिकता है उस पर ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह जरूर है कि ऐसा क्यों होता है। और इस फिल्म का जो अंत है उसमें ये कहा गया है कि जीनत और जो उसी के भाई से प्यार हो जाता है, उसे पता नहीं होता है ये मेरा भाई है, और बाद में रुक्मिणी बाई उसे बताती है कि तुम दोनों भाई बहन हो, लेकिन दोनों ही इस बात को नजरअंदाज करते हैं और एक रात को भाग जाते हैं। और पता लगता है तो उनके पीछे सारे लोग भागते हैं और जीनत जान दे देती है, लेकिन वो लड़का बच जाता है। और उसके बाद रुक्मिणी बाई बहुत परेशान हो जाती क्योंकि जीनत से बहुत ज्यादा लगाव होता है उन्हें। और तब बाकी की जो लड़कियां होती वो उन्हें कहती कि आपको क्या लगता है उसके लिए कितने दिन रोएंगी आप, और अगर आप उन्हीं के लिए रोना चाहती हैं, सब काम बंद रखना चाहती, तो बेहतर है कि आप यहाँ से चली जाएं। तो रुक्मिणी बाई वहां से निकल जाती हैं अपने इतने सालों से जमे हुए उस जगह से, और एक दरगाह के पास आती हैं। तो वहां जो फकीर है वो कहते हैं कि पागल है क्या तू, वो देख सामने क्या है, मांग ले कुछ। तो उनके साथ उनका एक बड़ा सालों से उनके साथ रह रहा उनका जो नौकर होता है वो भी चला आता है, और वहां उन्हें शिवलिंग मिलता है, ये फिल्म में दिखाया गया है। और तब वो फकीर कहता है कि मांग ले कुछ, तब वो कहती है कि मुझे रास्ता दिखाइए, मैं क्या करूं अब। और उसी वक्त फिल्म का अंत ऐसा है कि नारी निकेतन में रखी गई फूलमणि नाम की उन्हीं की एक उनके साथ रहने वाली लड़की दौड़ती हुई उनकी तरफ आती हुई दिखाई देती है, और इस तरह से उनको एक नया रास्ता मिल जाता है कि चलिए फूलमणि के साथ मिलकर मैं शायद अपनी जिंदगी आगे ले जा सकूं। तो ऐसी ये फिल्म की कहानी है, समाज की विसंगतियां, मनुष्य स्वभाव के कई रंग, मान्यताएं, अपना खुद का स्वाभिमान, लालच, प्यार, इन सभी तमाम भावनाओं को अपने आप में समेटे हुए। और श्याम बेनेगल जी का डायरेक्शन है तो हम जानते हैं कि उनका कोई जवाब नहीं, इसीलिए इस फिल्म को बहुत खूबसूरती के साथ उन्होंने फिल्माया भी है। और मेरे ख्याल से ये एक प्रतीक है मानव समाज का और हम सभी के विचारों का, जो आनंदी पर आधारित फिल्म मंडी में दिखाया गया है। और एक और वाकया मुझे याद आ गया, जब बहुत हम छोटे थे तो हमारे घर एक कोई सज्जन आया करते थे, और वो अक्सर अब मुझे पता लग रहा है कि वो कहाँ जाते थे। तो वो आने के बाद हमेशा एक शेर गुनगुनाते हुए आते थे कि फिर जाफरान की आ रही खुशबू, फिर जाफरान की आ रही खुशबू, खिड़की खुली हुई शायद उनके मकान की, खिड़की खुली हुई शायद उनके मकान की। तो ये मुझे याद आ गया इस बहाने से। तो ये एक बहुत खूबसूरत फिल्म है, मतलब अगर किसी ने ना देखी हो तो जरूर देखें, क्योंकि अभिनय के लिहाज से इसमें बहुत ही बढ़िया काम किया है सभी कलाकारों ने, सभी अपने आप में लाजवाब हैं। तो मेरा बस इतना ही था कि इस तरह से इस कहानी को मैं बता सकूं। और निश्चित तौर पर मैं अपनी ओर से ये मानती हूँ कि जब औरतों को आप किसी चीज के लिए मना करते हैं या उन पर कोई प्रतिबंध लगाते हैं, तो पहले ये सोचें कि क्या हम यानी पुरुष सही हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच नीरजा जी। तो जिस तरह से संजय जी, संजय सक्सेना जी, संजय भारद्वाज जी, जैनाज और आपने हार्श रियलिटी, रियलिज्म, दैट्स व्हाट गुलाम अब्बास डिड इट सो वेल। एंड जैसे संजय जी ने बताया कि अपने पूना के शहर में द सेंटर ऑफ द सिटी इज बुधवारपेट, द रेड लाइट एरिया, एंड you know, so what is important, the dog wags the tail or the tail wags the dog. So this is so निर्जा जी आपने बहुत अच्छा बोला, आप जिस तरह से बोलते हैं it's very enchanting, it really grasps your attention.
So thank you very much, Nirja ji. And Nasima, तुझे कुछ बोलना है इस मामले में? You told me you want to say something. One minute, Nasima will say something. मुझे एक दो इंफॉर्मेशन ये देनी है कि गुलाम अब्बास साहब ने तवाइफ पे 3 और अफसाने भी लिखे थे। एक अफसाने का नाम था उसकी बीवी, दूसरा अफसाना था बवर, और तीसरा अफसाना तो मुझे याद नहीं, लेकिन जो उसकी बीवी का अफसाना था वो एक घरेलू औरत रहती है और तवाइफ भी रहती है। तो उसकी बीवी गुजर जाती है, वो तवाइफ के पास आते हैं, और मगर वो जो तवाइफ होती है उसके अंदर की औरत मरी हुई नहीं रहती, ये बताया गया है। बवन का जो अफसाना है वो उन लोगों को निशाना बनाया गया है जो तवाइफ की इस्लाह यानी उसको सुधारने की कोशिश करते हैं, मगर मुआशरा कुछ ऐसा है कि तवाइफ को घरेलू औरत के तौर पर कबूल नहीं करता। ऐसे में तवाइफ की इस्लाह यानी उनको सुधारना सिर्फ बातें रह जाती है। तो उन्होंने, और एक और है उनका अफसाना बुर्दा फरोश, जिसकी कहानी मुझे याद नहीं है, मगर उन्होंने इसमें भी तवाइफ को ही जाहिर किया है कि किस तरह की जिंदगी वो गुजारते वगैरह। तो अभी हम ऑडियंस से पूछे फारूक। या तो रुखसाना जी से मैं इनवाइट करना चाहता हूँ कि रुखसाना जमादार, इफ यू वुड लाइक टू से एनीथिंग, रुखसाना जी। Yeah, please. Am I audible? या Okay, good evening viewers. मैं तो कहूंगी बुनियादी तौर पर आनंदी में ये बयान किया गया है कि एक कैसे एक बंजर जमीन शहर में मुंतकिल हो जाती है, कैसे एक माशरा, एक सोसाइटी, एक शहर वीरानी के बाद आबादी में तब्दील हो जाता है। अमीर तबका सिविल सोसाइटी के नाम पर कैसे एक ही गलती बार बार दोहराते हैं। इन सारी चीजों को एक ही अहम तरीन तरीके से दर्दनाक अंदाज से भी पेश किया गया है। और दूसरा ये कि छोटी छोटी चीजों की मंजरकशी बड़ी खूबसूरत है। हर एक पेशा, हर एक तबका, हर एक रिश्ता, इसको हर एक शख्सियत को मुकम्मल तौर पर बयान किया गया है, बड़े ही उम्दा तरीके से बयान किया गया है। छोटी छोटी चीजों को लेकर, जैसे अच्छाइयां, बुराइयां, जैसे औरतों को जब डिस्क्राइब करते हैं तो वहां पे अच्छी औरतों के बारे में भी बताया है। उसी तरह से जो औरत एक तवाइफ में बसी हुई है उसको भी उन्होंने बयान किया है। मैं तो समझती हूँ कि जब तक दुनिया में मर्द और जन की जात जिंदा है तब तक इस तरह की कहानियां बनती रहेंगी, बड़े खूबसूरत अंदाज से। वेरी करेक्ट रुखसाना जी, बहुत अच्छी। Now I request other members of the audience to give their opinions. Mukul, would you like to say anything? मुकुल जी। हाँ जी, आपको कुछ कमेंट करना है? नहीं, not really. I'm so happy listening. Okay. Anybody else would like to add? Tazeen, the canteen wala is there. Would you like to add anything, Tazeen? Farooq, can I speak up? Yeah, Satish. Yeah, tell. This is something which I have been fighting for quite some time. I keep saying that it is the women who really will take us out of what we are. Satish, why don't you put on your video? सतीश भाई का आवाज नहीं आ रहा। आवाज आ रही है, and speak a little loudly, Satish ji. अरे मैं और loud क्या है? I can break all the eardrums with that. Okay. I always have been saying for a long time that men tend to hold themselves together. What they do, perfectly all right, but look at women with a eye which is not correct. I have been saying this very much so that it is the women will be taking us tomorrow's, which will be good. The men will not be in a position to do that. Coming back to the story that was told, I've heard it before, etc. And this is always so. You go out and put up something new, and suddenly everyone wants to come down there and it moves. So the thinking, though I'm talking from not from the gender point of view, from town planning. In town planning, they do not take a wider look than anything else.
They have taken up one area, they built up an area, now they want to push it further away. This, I don't think, is the right way to happen around the country, whether it's Pune or Mumbai or anywhere. This is what is happening. So let's say there were many people in our times who thought far ahead than what was there, and they were not identified for being there. I think what we are doing is to get these people to come and talk about it. And believe you me, if the women lead the country, we'll be in a far, far better world than what we are. Thank you, guys. All the very best. There, I would like request. one minute. Don't laugh at what I'm saying. That's I can see Nasima laughing. Nasima, this is serious. She's enjoying the. Serious what I say. I'm really proud what you are saying. This is very serious. That this is what I would like to have it around, where more women than men would be on the governing stage of the country. Okay, anyone take it over? Yeah, can I? Mohit. Yeah, who's speaking? Mohini. Kaun bol rahe? Yeah. Mohini. So I wanted to say a couple of things about the story itself. I wanted to say that I like the style of narration, which is a very deadpan style of narration, where he doesn't underline anything. He allows the reader, to discover and to realize for himself, which is very effective. Irony, the whole story is built on irony. So that's very powerful and comes off very well. And of course, the amazing hypocrisy of the male species is so distracting. Because men are tempted to go and see these women, outside of their own family lives. And then they turn around and blame the women, for tempting them. And this is so ridiculous. It's in the story and it's all around us all the time. It's something that makes my blood boil, frankly. So I'll just move on before it actually boils and I start talking that way. Farooq, I really enjoyed the program very much, and very kind of you to have sent me the story, so I was able to read it. And it's a familiar story. Satish says he's read it. I don't know if I've read this or I've read something similar, but it's one it has been printed as a women quarters or something like that. Women quarters or something. The English version is called, I'm not sure. Okay. No, I think, Farooq, it has been printed as the women's quarter. You got Women's it right. quarter, yeah. And in this program type model, Sanjay ji, we send the Hindi version, the Urdu version, and the English version to all the members of Guldasta Urdu. Yeah. So this was a new format where we send the story early. Right. No, so I wanted to say that that's what I like very much. We did it with Mukul stories. Mukul had talked about some Dalit stories, and she picked only 2. And we circulated those, so everyone had read the stories and we had a terrific discussion. So this format where you're enabling everyone, to have informed opinions because they're already prepared, works very well. And the focus is small, 1 story or 2, but that becomes manageable in a program of this length. So I loved it. Please do this sort of thing again. So what we plan to do is that there are many Urdu writers who have been, forgotten, especially in India, because many of these Urdu writers shifted to Pakistan. So we want to take few writers, and Mumtaz Pirba has been always telling me that many of these Urdu writers are so poor, that many of the children are just, literally torn their works or sold it in Raddi or something. So मैं सोच रहा था कि एक लेते हैं every month, one poet or author or somebody who has done some magic, Otherwise, we only talk about Mirza Ghalib and Monto and Sahir Ludhianvi and also. Very true. Very true. Yeah. So we'll take some authors, and on Guldasta Urdu, or in the book club, if somebody can send an idea. Nida Fazli is one of the authors we plan to take in the future, but we are not yet confirmed it. So I wanted to sort of wind up the program just now, and I wanted to ask if anybody else wants to say anything, something.
So I hope everybody has enjoyed the program. Very much, very much. Yes, very much indeed. Farooq ji, can you send me the story if you have it? Yeah. Before I end, yes, well, Mukul कुछ बोल रहे हैं आप? आपके पास इंग्लिश में स्टोरी है वो? इसकी निदा फजली की? नहीं, ये वाली Yes, yes. आनंदी, You please. know, the joke is, I have put it on Guldasta Urdu, but unfortunately Mukul has left Guldasta Urdu, but I'll send it to you. No, I'm there. I'm very much there. मैं भेजता हूँ, मैं सब भेजा हूँ आपको, आपको वापस भेजता हूँ मैं. Thank you. So, Farooq, can I also just quickly add one line? yeah. The speakers that you have chosen all spoke so beautifully, so to the point, briefly, each one added something to our understanding of the story. Very well spoken. Yes. Thank you. You know, just That's like very kind of you. Very kind of you. Book Club has picked up a group of people around Book Club who speak so well. I'm trying to match up to that, and I'm trying that Jana the Guldasta Urdu mein bhi log aaye aur kuch, such type of intellectual conversation is always enjoyable. It's an evening to remember, And Yes. Zia, you want to say something, Zia ji? Zia Qureshi? ये मेरा दोस्त है, वो हमेशा आता है पर बोलता नहीं है. Anyway, so with the permission of everybody, I'd like to close down the program. This program is available on Facebook. I'll be sending the recording. It will be available on our website and on YouTube by next Monday. So thank you everybody. And if you remember to donate to Nitya Shah Foundation, please do remember, just type Nitya Shah Foundation on Google. There's a donate page. Please donate, and the money will all go to children with type 1 diabetes. Thank you everybody. Thank you, and good night Thank you, everybody. Zainab. Thank you, everybody. Farooq bhai, Yeah. I have not left Guldasta Urdu. Its meetings clash with our storytellers group at the same time, same day. So I have to make a choice. I am not going to leave this group. Thank you. No. Thank you very much. I am very honored, Mukul ji. आप रहते तो जरा एक तसल्ली होती कि चलिए, बहुत अच्छी बात है. अगर तसल्ली होती है तो बहुत ही अच्छी बात है. बहुत अच्छी बात है. And Mohini, Mukul has been doing a wonderful work for Gyan Ruchi since the last 2 weeks, and she is now taking care of Gyan Ruchi ladies one batch. And she has a unique style of teaching, different style. Okay, Great. thank you very much, Sanjay ji, Zainaz ji, and we miss Mustafa and Sanjay ji, Bhardwaj ji, और निर्जा जी, आपको बहुत thank you. आपने रुखसाना जी, आपने भी आया प्रोग्राम में contribute किए. Thank you very much. Good night, everybody. Namaskar. All the best. Take care. Bye.